Hello students. So today I will take the examples of IUPAC naming of coordination compounds and the questions which are frequently asked in board examination. So the first complex is Na3CrOH whole twice F4. So this complex is divided in two parts. First is cationic part and then anionic part. So according to the IUPAC nomenclature, first we write the name of cationic part. So in cationic part element sodium is present on this. So we start with naming, that is simply we write sodium. Then negative part naming. So in negative part naming, first we start with the naming of ligands. So two ligands are attached in this. One ligand is start with alphabet F and second is start with alphabet H. First we write alphabet F. So 4 F fluoride ions are present. So we write tetra FluO, fluorido according to rule, and then write di hydroxide, and instead of writing hydroxide we use hydroxido. So these are the names of ligands. So according to rule, there is a gap between cationic part and anionic part. So similarly we show here also. Then write the center metal atom name. So according to the rule, if we name the negative part or anionic part, then we write 8 at the end of the name of center metal atom. Here Cr is present, that is chromium. So we write chromate. At is the suffix used at the end of the metal atom. And then the oxidation state of this complex. So the oxidation state of this complex we can easily calculate with this 3, and the charge on sodium atom is +1 plus X for center metal atom, plus twice multiplied with -1 is the charge of hydroxide ion, and again -1 is the charge of fluoride ion as well. So -1, that is equals to 0 because there is no charge on the complex. That's why we write that is equals to 0. If we solve this, then that is equals to x minus 6. So here x minus 3 equals to 0, x equals to 3. So the oxidation state of this complex is 3, and we write in Roman numerals. So this is the whole name of this complex, sodium tetrafluorido dihydroxido chromate third. Now move to next example, that is second example. This example is MnH2O whole 6 3 positive. So here charge is given on the complex ion. So in this example simply we apply the same rule here. First write the naming of ligand first, followed by the name of center metal atom. Simply write this hexa because 6 H2O are attached with the center metal atom. So we write hexa and AQUA, aqua, for water. Then water is a neutral ligand. So we write the name of this element as manganese, and then state of manganese, and then at the end if there is a charge on the complex, whether it is positive charge or negative charge, simply we end the name with writing ion से उसको end करते हैं. और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करें, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड इसमें प्रेजेंट है, तो Mn का आपका x हो गया जिसका कैलकुलेट करना है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड विद 0, वाटर का चार्ज आपका न्यूट्रल होता है 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू +3. तो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी 3. सो दिस इज द होल नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, हेक्सा एक्वा मैंगनीज थर्ड आयन. नाउ मूव टू थर्ड वन. थर्ड जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके दो लिगेंड्स अटैच्ड हैं. तो पहला लिगेंड है आपका, एक लिखा हुआ है COCl2 En होल वाइज. ये ब्रैकेट में जो आपके लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए यूज होता है. बाइडेंटेड हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस करा था, आपको बताया था.
EN जो होता है, दिस इज द एब्रिविएशन फॉर इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन आपका जो लिगेंड है उसके लिए यूज होता है, या इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी लिखते हैं इथेन एथ 1,2 डाइअमाइन। तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो इसका नेमिंग आपका ये हो गया। ये बाइडेंटेड लिगेंड में अगर होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, तो उसमें आपका क्या होता है, नेमिंग लिखते वक्त हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसका अल्फाबेट ई से शुरू हो रहा है, उससे पहले आपका सी वाला अल्फाबेट वाला है। तो जो इसकी हम नेमिंग जब आप लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फाबेट ऑर्डर में कौन सा लिगेंड फर्स्ट आया हुआ है। तो अल्फाबेटिकली सी कम्स फर्स्ट, तो सिंपली वी राइट फर्स्ट डाई क्लोरिडो। डाइक्लोरिडो हम पहले लिखेंगे। फिर इस वाले बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हम लिखते हैं बाई या डाई यूज करते हैं, पर यहां पर को बाइडेंटेड है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है बिस, BIS लग जाता है। या अगर ट्राई होता तो लिखते हैं ट्राई के आगे एस, ट्रिस लगा देते हैं अगर होल थ्राइस होता तो। पर यहां पर को आपका क्या है, ट्वाइस ही है, तो ये हो गया बिस। अब यहां आप लिख सकते हो एथ 1,2 डाइअमाइन। ये तो आपका इसका लिगेंड्स के नेम हो गए। अब लिगेंड्स का नेम आप एक ही उसमें लिख सकते हैं, पूरा नेम भी एक ही इसमें लिख सकते हैं, बट यार एग्जाम्पल को समझाएंगे तो ये नेम हम यहीं पर को लिख देते हैं, कोबाल्ट, देन स्टेट। और प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आपका प्रेजेंट होती है स्पीशीज, उसको हम सिंपली एंड कर देते हैं उसके एक्चुअल नेम से। तो दिस लिगेंड इज नोन एज क्लोराइड। ये लिगेंड नहीं है, ये स्पीशीज है आपकी नेगेटिव स्पीशीज, क्लोराइड से एंड कर देंगे। और अगर ये अंदर की तरफ है, जब ये लिगेंड होता है तो लिखते हैं हम क्लोरिडो। तो इसकी स्टेट अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आ रही है 3rd, क्योंकि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली तो आप देख सकते हैं कि जिसका कैलकुलेट करना है उसको हमने x लिख दिया, प्लस हेलाइड का -1 हो गया, 2 हेलाइड्स है। इथाइलिन डाइअमाइन एक आपका न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता। ये Cl को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3। तो ये इसकी स्टेट आ गई और ये इसका ओवरऑल आपका नेमिंग हो गया। 3rd जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है डालेगा, दिस इज द होल नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज पोटेशियम K3Cr। यहाँ पर वो जो लिगेंड आपका यूज हुआ है, ये आपका इसका एब्रिविएशन भी यूज होता है, इसको हम लिख देते हैं OX। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में ऐसा भी लिखा हुआ आएगा, ऑक्सलेटो, दिस इज ऑक्सलेट आयन। तो इफ वी राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस, देन फर्स्ट स्टार्ट विथ कैटायनिक पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो K3 में अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली starting with the name of cationic part, that is potassium, then move to next। ये एनायनिक पार्ट में आपका जो हम नेमिंग लिखेंगे उसमें आपका जो ये आयन है, पहले लिगेंड का, सॉरी ये लिगेंड का आपका नेमिंग लिखेंगे तो होल थ्राइस है। तो जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो मैंने बोला था ट्राई की जगह हम यूज करते हैं ट्रिस, S लगा देते हैं। तो ये भी रूलिंग का पार्ट है। तो ये हो गया पोटेशियम ट्रिस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑक्सलेटो, एक आयन का नेम है। ये नेगेटिव पार्ट की नेमिंग कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का नेम करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका आपका नेम हो जाएगा क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आपकी 3। और उसको आप इस तरीके से सीख सकते हैं या जान सकते हैं। यहां पर आपका इसका स्टेट है 3 मल्टीप्लाइड विथ +1 पोटेशियम के लिए, प्लस x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज द चार्ज ऑन ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सलिक एसिड है, इसका चार्ज आपका ऑक्सलिक एसिड का जो चार्ज होता है वो भी आप जान लो, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसलिए इसके -2 चार्ज है और दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्पीशीज में आपका जो हम मेंशन करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे 3 + x - 6 = 0,
x minus 3 equals to 0 and x equals to plus 3. So the oxidation state of central metal atom is 3. So this is the overall name of this complex, potassium trisoxylato chromate third.